डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनिल पांडे क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग। सपोज बच्चों एक प्लेन है, एक प्लेन है, ये एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसके पोजीशंस कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1। ओरिजिन से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो पोजीशन वेक्टर a यानी कि x1 y1 z1 इसकी पोजीशंस हैं। p एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, p एनी पॉइंट ऑन द प्लेन x y z, whose position vector is r. AP is a vector in the plane. AP is a vector in the plane. Now, normal and vector is a normal vector on the plane. You know normal. Perpendicular to plane is normal. Okay, this is a normal vector. We call it n vector. Now, AP is perpendicular to n. AP is equals to R minus A. AP R minus A is dot n equals to 0, applying condition of perpendicularity. You know AP means R minus A and vector n are perpendicular to each other, therefore applying the condition of perpendicularity. So this is the vector equation of plane passing through a point whose position vector A. Okay, now simplifying, R dot n minus A dot n is equals to 0. Vector R dot n is equal to A dot n. R dot n is equals to D. A dot n is a scalar product. This is equals to say D. So this is the vector equation of plane in general form. Okay, in general form. Now Cartesian equation of plane. Cartesian equation of plane passing through a point and perpendicular to given vector n. So here our Cartesian equation means equation in xyz की फॉर्म में इक्वेशन। तो r को हम क्या लिखेंगे? xi प्लस yj प्लस zk माइनस a एक वेक्टर होगा, उसके कोऑर्डिनेट सपोज हम मान लेते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k, क्योंकि a क्या है? a की पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है, तो a वेक्टर a क्या होगा? x1i प्लस y1j प्लस z1k होगा। डॉट n, सपोज n एक वेक्टर है ai प्लस bj प्लस ck इज इक्वल टू 0। तो यानी कि हम कह सकते हैं x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k डॉट n ai bj प्लस ck इज इक्वल टू 0। a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0, यानी ax प्लस by प्लस cz माइनस ax1 माइनस by1 माइनस c इज इक्वल टू 0, और ax प्लस by is equal to ax1 plus by1 plus cz1 equal, ax1 plus by1 plus cz1 has a value
say ax plus by plus cz equals to, this is the general equation of plane in Cartesian form. Okay, this is the number one equation is Cartesian equation of plane passing through a point and perpendicular to a vector whose direction ratios a, b, c. And this is the general equation of plane in Cartesian form. Here a, b, c are direction ratios of normal vector. Okay, डायरेक्टली हम यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं. r डॉट एन इक्वल्स टू डी. r को हम लिखेंगे एक्स आई वाई से जेड के, n को एक नॉर्मल वेक्टर लिखेंगे, इनका डॉट करेंगे तो सेम चीज आएगी बेटा. ओके, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन. ये और ये कार्टेशियन इक्वेशन इक्वल है बेटा, सेम चीज है. इसी को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज आएगी, और जनरल इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे ये आएगी. यानी कि हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए किसकी जरूरत है? एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो एक पॉइंट चाहिए और नॉर्मल वेक्टर चाहिए. ओके, तो जैसे क्वेश्चन अराइज होता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point, passing through a point 1, 2, 3 and perpendicular to vector 2i plus 3j plus 4k. Okay, here a vector is equals to I plus 2j plus 3k. Here 1, 2, 3 are coordinates of a point. Position vector of that point, उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी? I plus 2j plus 3k. एंड नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? 2i plus 3j plus 4k. Therefore, equation of plane passing through a point r minus a dot n equals to 0. तो r क्या? r minus a ब्रैकेट में लिखेंगे i plus 2j plus 3k. माइनस होता है तो ब्रैकेट में लिखते हैं. डॉट n 2i plus 3j plus 4k is equal to 0. इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा बच्चों? r डॉट 2i plus 3j plus 4k माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 plus 6 plus 12 is equals to 0. तो r डॉट 2i plus 3j plus 4k माइनस इज इक्वल टू 20. तो इसको कंपेयर कीजिए तो r डॉट n इक्वल्स टू डी फॉर्म की है कि नहीं है? हियर n ये है बेटा, नॉर्मल वेक्टर. यानी कि हमें एक प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर चाहिए और एक पॉइंट चाहिए. तो 2, 3, 4 नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं. आपको होता है कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? जो आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके लिए हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए. अगर एक परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं दिया होगा तो उसके लिए कुछ कंडीशनें दी होंगी. ठीक है, अच्छा इसी को हम प्रोसीड करते हैं. देखिए, नाउ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. सपोज दो प्लेन दे रखी है, r डॉट n1 इक्वल्स टू d1. एक प्लेन नंबर 1 है, दूसरा प्लेन है r डॉट n2 इज इक्वल्स टू d2, नंबर 2 प्लेन. इन दोनों प्लेनों के बीच में एंगल फाइंड करना है. तो बच्चों दो प्लेनों के बीच में एंगल वही होता है जो उनके वेक्टर्स के बीच में होता है. जैसे ये दो प्लेन है, एक प्लेन ये है,
इसका नॉर्मल ये n1 ये प्लेन, तो दूसरा प्लेन है सपोज कैसे ही है, दूसरा प्लेन कैसे हमें ये दिया हुआ है, इसका नॉर्मल ये है। तो दो प्लेनों के बीच में एंगल वही होगा जो उनके नॉर्मल्स के बीच में होगा, नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में होगा। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन इज गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है। तो टू प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होंगी? टू प्लेन्स r dot n1 equals to d1 and r dot n2 equals to d2 perpendicular to each other, perpendicular to each other कब होंगे बेटे? जब n1 डॉट n2 जीरो होगा। यानी कि हमें पता है कि दो प्लेनों के बीच में एंगल क्या होता है, जो उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल होता है। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होगा? 90। अगर नॉर्मल क्या है? वेक्टर्स है, तो नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 है। तो हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 होता है तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होती है n1 डॉट n2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। सिमिलरली टू प्लेन्स आर पैरेलल, टू प्लेन्स आर पैरेलल इफ n1 इज इक्वल्स टू लैम्डा n2, उनके नॉर्मल वेक्टर में सेम रेशियो होगा। उनके नॉर्मल्स में क्या होगा? सेम रेशियो होगा। नॉर्मल के डायरेक्शन नॉर्मल वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज में सेम रेशियो होगा। यानी कि n1 इज इक्वल्स टू स्केलर टाइम्स n2। ये कंडीशन ऑफ पैरेलल। जैसे दो प्लेन है, r डॉट एग्जाम्पल बता रहे हैं, r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k एक प्लेन है, 4। दूसरी प्लेन है 2i प्लस 4j प्लस 6k इज इक्वल्स टू 5। देखो बच्चों एक प्लेन है, हेयर n1 क्या है? i प्लस 2j प्लस 3k है, और n2 क्या है? 2 कॉमन ले लेते हैं, 2, यानी कि i प्लस 2j प्लस 3k है। तो n1 जो है वो 2 टाइम्स, जो n2 वेक्टर है n2 वो 2 टाइम्स n1 है, यानी कि n2 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स n1 है। ये वाली कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो दोनों प्लेन क्या है? पैरेलल है। ऐसे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की क्या हो? इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तो दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगी। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन अराइज होते हैं। हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्लेन और लाइन पे कंबाइंड होते हैं, प्लेन और लाइन पे कंबाइंड इक्वेशंस होते हैं। तो बहुत सारे हमें इक्वेशन निकालनी है प्लेन की या लाइन की। तो इसके बाद देखिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू गिवन प्लेन। सपोज हमें एक प्लेन दिया है r डॉट n1 n इक्वल्स टू d, एक प्लेन है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू गिवन प्लेन, एक गिवन प्लेन है r डॉट n इक्वल्स टू d। हमें या सपोज करो कि एक प्लेन है r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 5 है। तो हमें इस प्लेन फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 to 3। ओके, तो ये प्लेन है बच्चों, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 1 2 3 ये गिवन पॉइंट है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड, हमें पैरों के कोऑर्डिनेट में सिर के कोऑर्डिनेट देखें, पैर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फुट के कोऑर्डिनेट। तो बच्चों हमें प्लेन की क्वेश्चन तो दे रखी है, लेट अल्फा बीटा गामा बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन। इस प्लेन में जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो अल्फा बीटा गामा है। सपोज करो अल्फा बीटा गामा है। अगर लाइन होती तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन लिखते। अब हमें प्लेन में कोई पॉइंट निकालने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो हमने अल्फा बीटा गामा मान लिए। नाउ डी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू।
पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, अल्फा माइनस वन कॉमा बीटा माइनस टू कॉमा गामा माइनस थ्री। अब क्या होगा बच्चों, देखो जो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ये देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज कौन वे, जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हुए 1 2 3 वे, आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं वो डी आर कहलाते हैं। तो इनकी डायरेक्शन रेशियोज में सेम रेशियो होगा, डी आर ऑफ पी क्यू दिस द डी आर ऑफ पी क्यू एंड डी आर ऑफ नॉर्मल पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल है तो क्या हुआ, अल्फा माइनस वन अपॉन वन इजिकल्स टू, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज में सेम रेशियो होता है, बीटा माइनस टू अपॉन टू इजिकल्स टू गामा माइनस थ्री अपॉन थ्री इजिकल्स टू से क्या मान लें इसको, सेम रेशियो होगा, इसको लेमडा ले लेते हैं। तो इससे क्या मिला हमें, अल्फा इजिकल्स टू लेमडा प्लस वन एंड बीटा इजिकल्स टू टू लेमडा प्लस टू एंड गामा इजिकल्स टू थ्री लेमडा प्लस थ्री। देखो ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लेमडा की टर्म में आ रही है। अब क्या करेंगे, तो ये अल्फा बीटा गामा है ये प्लेन में है, तो प्लेन की इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई मतलब ये जो अल्फा बीटा गामा है कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट है तो कहाँ रखे जाते हैं, प्लेन की इक्वेशन में आर में रखे जाते हैं। आर क्या होता है, जनरल पॉइंट होता है एक्स वाई जेड, तो हम आर में रखेंगे। तो लेमडा प्लस वन इंटू आई प्लस आर वेक्टर, तो टू लेमडा प्लस टू जे प्लस थ्री लेमडा प्लस थ्री के डॉट एन आई प्लस टू जे प्लस थ्री के इज इक्वल टू 5। अब सॉल्व करें इसको, तो लेमडा प्लस वन टू लेमडा प्लस टू इंटू टू प्लस थ्री लेमडा प्लस थ्री इंटू थ्री इज इक्वल्स टू 5। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, देखो लेमडा प्लस वन प्लस फोर लेमडा प्लस फोर 9 लेमडा प्लस 9 इज इक्वल टू 5। तो 5 13 लेमडा प्लस 14 इज इक्वल्स टू 5। तो 13 लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस 9, तो लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस 9/30, तो लेमडा की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 9/13 प्लस 1 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 9/13 प्लस 2 एंड गामा 2 इंटू माइनस 13 प्लस 3। सॉल्व इट, you will get the foot of perpendicular on the plane। सपोज करो कि अब आगे क्वेश्चन ये है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज निकालें, फाइंड द इमेज ऑफ दैट पॉइंट अंडर द प्लेन। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मैंने पहले स्ट्रेट लाइन में भी बताया था, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो मिड पॉइंट हो जाता है एक तरह से। इसकी इमेज सपोज करो कि इस पॉइंट की इमेज जो है, पॉइंट है 1 2 3, इसकी इमेज है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो ये मिड पॉइंट हो गया है। तो मिड पॉइंट से फॉर्मूले से हम इसके एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हम इमेज फाइंड कर सकते हैं। यानी दो क्वेश्चन हो गए हमारा, एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज। कभी कभी ये आता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लाइन और प्लेन पे डिपेंड क्वेश्चंस हैं। तो देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन है एक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग
पासिंग थ्रू 1 2 3 मान लेते हैं, 1 2 3 से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट 1 2 3 यानी पोजीशंस 1 2 3 है, एंड पैरेलल टू लाइन, एंड पैरेलल टू लाइन, एक लाइन के पैरेलल है, आर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लेमडा i प्लस j प्लस k। सपोज ये लाइन एक प्लेन की क्वेश्चन फाइंड करनी है, इस लाइन के पैरेलल है, प्लेन पैरेलल है, एक प्लेन है वो लाइन के पैरेलल है, तो प्लेन है, हमें इक्वेशन निकालनी है, प्लेन एक पॉइंट दे रखा है, इसका नॉर्मल वेक्टर नहीं पता मुझे प्लेन का, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो इसके पैरेलल वेक्टर b है। बच्चों देखो, जब प्लेन पैरेलल होता है किसी लाइन के तो उसका जो नॉर्मल होगा, जो प्लेन का नॉर्मल होगा, सपोज फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, सॉरी परपेंडिकुलर टू लाइन होगा, नॉट पैरेलल, परपेंडिकुलर टू लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, आर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लेमडा टाइम्स दिस, इस लाइन के परपेंडिकुलर है प्लेन। ठीक हो गया, प्लेन परपेंडिकुलर लाइन के, तो प्लेन अगर लाइन के परपेंडिकुलर है, प्लेन लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जो लाइन का, यानी कि लाइन ऐसी होगी, प्लेन एक प्लेन है ये, वो लाइन के परपेंडिकुलर है, एंड तो जो लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा वो प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल होगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं, हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो अगर प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर है तो जो लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा b, वो प्लेन पर नॉर्मल होगा, यानी कि हमें क्या मिल गया, पॉइंट भी मिल गया और नॉर्मल वेक्टर भी मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन r माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0 होती है, तो क्या हो गया, r माइनस ए कहां से पास हो रहा है, प्लेन 1 2 3 से, तो i प्लस 2j प्लस 3k डॉट द पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन विल बी नॉर्मल टू द प्लेन, तो r माइनस